Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss Super 15 third MCQ on fundamental rules. My friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. In this part, I will discuss 15 MCQs with explanation. And question pattern is latest one. What type of questions are coming nowadays? In the same pattern, actually I prepared the question. Definitely the session would be interesting one. Up to the end, you listen my video. Definitely you collect some qualitative and effective information. Again, please my friends, subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. And basically my videos are useful for different type of central government and state government exams. My contact WhatsApp number, it is 8327782034. You can contact with me. My Telegram channel is there. Telegram channel link is t.me/BAPI2034. You can also join my channel. Then you can up to date yourself about my videos. Now I am going to start third MCQ, Super 15 MCQs. It is third one on fundamental rules. You see, question number 1. It is related to the joining time rules. Central, it is CCS, Central Civil Services. It is CCS, Central Civil Services. Joining time rules 1979 shall apply to. एक्चुअली जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम 1979 है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? यहाँ पर 5 ऑप्शंस गिवन. रेलवे एम्प्लॉइज, armed forces personnel and those paid from the defense services estimates, government servants engaged on contract and those who are not in whole time employment of government servants paid out of contingencies, all government servants appointed in civil services and post under the central government including work charged staff. देखिए, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 है, रेलवे एम्प्लॉइज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आर्म फोर्सेस पर्सनल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है. एंड दोज पेड फ्रॉम द डिफेंस सर्विसेज एस्टिमेट्स, यू रिमेंबर, आर्म फोर्सेस पर्सनल एंड दोज पेड फ्रॉम द डिफेंस सर्विसेज एस्टिमेट्स, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है. जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट में है और उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो होल टाइम नहीं है, ओके, दोज टाइप ऑफ एम्प्लॉइज आर working on contract basis and their employment is not whole time one, also joining time is not applicable for them. Those employees, basically government servants paid out of contingencies, उनके लिए भी CCS joining time rules 1979 applicable नहीं है. लास्ट वन आंसर होगा. आप जानते हो वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स वर्किंग अंडर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, सो सिविल सर्विसेज, ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड इन सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग वर्क चार्ज्ड स्टाफ, जो 5th स्टेटमेंट है उनके लिए ही अप्लीकेबल है CCS ज्वाइनिंग टाइम रूल्स. So option C is the correct answer. Okay, for those government servants actually basically appointed in civil services and post under the central government including work charged staff. बाकी रेलवे, आर्म फोर्सेस and those paid from the defense services estimate, those employees working on contract basis, those type of people are working but their employment is not whole time one. those government servants paid out of contingencies, so उनके लिए ज्वाइनिंग टाइम अप्लीकेबल नहीं. जो CCS ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 अप्लीकेबल नहीं है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. यहां पर आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. जो CCS ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979, आप रूल 1 को देखिए. रूल 1 में क्लियरली मेंशन है
कि जो ज्वाइनिंग टाइम है सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स किसके लिए एप्लीकेबल है और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो शाल नॉट अप्लाई टू, इसको देखिए, शाल नॉट अप्लाई टू रेलवे, अभी अभी हम डिस्कस किए थे, रेलवे एम्प्लॉइज, आर्म फोर्सेस पर्सनल एंड those armed forces personnel actually they are getting payment from the defense services estimate कि government servants, those government servants working on contract basis, कि those government servants they are working but their employment is not whole time on, कि those government servants actually they are getting payment out of contingencies, तो इनके लिए सीसीएस सेंट्रल सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 एप्लीकेबल नहीं है। इसमें एक याद रखिए, दोज गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड अंडर सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट इंक्लूडिंग, ये भी याद रखिए, वर्क चार्ज स्टाफ, उनके लिए भी ओके सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल एप्लीकेबल है। ओके, तो जस्ट टू रिमेंबर, ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड इन सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग वर्क चार्ज स्टाफ, उनके लिए सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 एप्लीकेबल है। ठीक है, ये रूल 1 आप देख लीजिए, सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979, उसमें क्लैरिफाई किया गया है। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको डिटेक्ट करना है। 2 स्टेटमेंट्स गिवन। फर्स्ट स्टेटमेंट, when a government servant to whom CCS joining time rules right apply is transferred to the control of another government or organization which has made separate rules prescribing amount of joining time, his joining time for the journey to join his post is coming under new government or organization। तो इसमें देखिए, जो क्लैरिफाई मैं थोड़ा कर देता हूं। आप अभी एक सपोज गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। सपोज ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया ए है, अभी आप जाकर अनदर ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करोगे, ठीक है, मगर ये दोनों का जो ज्वाइनिंग टाइम रूल्स डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो आप बेसिकली जो गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन से आप रिलीव होकर चले गए, आप जाकर अनदर गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे। इसमें कौन आपको ज्वाइनिंग टाइम देगा? ओके, फ्रॉम व्हिच ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट द कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट अवेल द ज्वाइनिंग टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। और दोनों में क्या है? डिफरेंट ज्वाइनिंग टाइम है। ज्वाइनिंग टाइम क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तो इस केस में याद रखिए, आप तो रिलीव हो जाओगे ना, आपका जो ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन वो ए है, यहां से रिलीव हो जाओगे, आप जाकर न्यू ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करोगे। मैं जो टिक मार्क दे दिया ऑर्गेनाइजेशन बी में, और बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग डिफरेंट ज्वाइनिंग टाइम रूल, ठीक है। तो यहां पर आपको ज्वाइनिंग टाइम कौन देगा? जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन करने वाले हो, वही आपको ज्वाइनिंग टाइम अलाउ करेगा, ठीक है। उसी का ज्वाइनिंग टाइम आप अवेल करोगे, राइट। तो इसमें जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, जो न्यू गवर्नमेंट है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो ज्वाइनिंग टाइम रूल्स है, उसको उसके हिसाब से आप ज्वाइनिंग टाइम अवेल करोगे। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। सेकंड, डेपुटेशन फॉरेन सर्विस में ज्वाइनिंग टाइम, आपका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो लैंडिंग डिपार्टमेंट है। अभी डेपुटेशन में जाकर आप जो डिपार्टमेंट में काम करोगे वो बोरोइंग डिपार्टमेंट है। टेम्पोररी पीरियड के लिए आप जाकर बोरोइंग डिपार्टमेंट में काम करोगे, ठीक है। तो उसमें जब आपको डेपुटेशन में जाकर आप ज्वाइन कर रहे हो न्यू डिपार्टमेंट में, तब आपको कौन ज्वाइनिंग टाइम देगा? इसमें रूल है, इसमें एक्चुअली म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। लैंडिंग जो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट और लैंडिंग डिपार्टमेंट और बोरोइंग डिपार्टमेंट, ठीक है। एक है आपका लैंडिंग डिपार्टमेंट और एक है आपका बोरोइंग डिपार्टमेंट। तो ये दोनों में क्या होगा? ये दोनों में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट में डिसाइड होगा कि जो कंसर्न एम्प्लॉय है वो डेपुटेशन में जा रहा है, वो किसका ज्वाइनिंग टाइम अवेल करेगा, ठीक है। ये है एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस में क्लियरली मेंशन है, ठीक है। मगर यहां पर जो ऑप्शन दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इन केस ऑफ डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस
ज्वाइनिंग टाइम रूल ऑफ लैंडिंग डिपार्टमेंट कैन बी फॉलोड, ये गलत है, ये नहीं है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताया कि यदि आप फॉरेन सर्विस और डेपुटेशन में जा रहे हो तब उसमें लेंडिंग और बोरोइंग डिपार्टमेंट के बीच में जो म्यूचुअल एग्रीमेंट एक होगा, उसमें जो भी डिसाइड होगा उसके हिसाब से आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। सपोज उसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा कि बोरोइंग डिपार्टमेंट का जो ज्वाइनिंग टाइम है कॉन्सर्न एम्प्लॉय अवेल करेगा, कि उसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा जो लेंडिंग डिपार्टमेंट और पेरेंट डिपार्टमेंट का जो ज्वाइनिंग टाइम रूल है उसी को फॉलो किया जाएगा, तो उसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट में डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट एक्चुअली रॉन्ग है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओनली सेकेंड स्टेटमेंट ओके इज इनकरेक्ट वन, राइट। इसमें देखिए क्लियरली मेंशन है, कुछ इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। रूल 2 ऑफ CCS ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979, when a government servant to whom these rules apply is transferred to the control, अभी मैं इसको डिस्कस किया था, जब आपका ट्रांसफर होता है ऑर्गेनाइजेशन ए से ऑर्गेनाइजेशन बी को और दोनों में जो जेटी है ज्वाइनिंग टाइम है उसका रूल डिफरेंट है, ओके, ज्वाइनिंग टाइम रूल्स डिफरेंट है, तो इस केस में जो कॉन्सर्न एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो रहा है उसका ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन ओल्ड गवर्नमेंट था ए था, अभी न्यू डिपार्टमेंट और न्यू ऑर्गेनाइजेशन बी है और दोनों का ज्वाइनिंग टाइम रूल्स डिफरेंट है, तो अभी वो किसका ज्वाइनिंग टाइम अवेल करेगा, तो जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहा है उसका जो ज्वाइनिंग टाइम रूल है उसके हिसाब से वो ज्वाइनिंग टाइम अवेल करेगा, वही है। ठीक है, सेकेंड में जो डेपुटेशन फॉरेन सर्विस में मैं बताया तो उसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, लेंडिंग डिपार्टमेंट जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वही लेंडिंग डिपार्टमेंट है और जो बोरोइंग डिपार्टमेंट है जो टेम्पररी पीरियड के लिए जिस डिपार्टमेंट में अभी वो एम्प्लॉय जाकर काम करेगा वही है बोरोइंग डिपार्टमेंट, तो दोनों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा कि वो जो कॉन्सर्न एम्प्लॉय अभी डेपुटेशन में जा रहा है वो किसका ज्वाइनिंग टाइम अवेल करेगा। ठीक है, तो यहां पर म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द बोरोइंग एंड लेंडिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म्स डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस विल कवर ओनली दोज अपॉइंटमेंट्स दैट आर मेड बाय ट्रांसफर ऑन ए टेम्पररी बेसिस प्रोवाइडेड द ट्रांसफर ऑप्शंस गिवन, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ठीक है, यदि आप डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस में जा रहे हो, आपका ट्रांसफर हो रहा है तो टेम्पररी बेसिस में होता है, तो उसमें दिया है द ट्रांसफर इज आउटसाइड द नॉर्मल फील्ड ऑफ डिप्लॉयमेंट, द ट्रांसफर इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, द क्वेश्चन वेदर द ट्रांसफर इज आउटसाइड द नॉर्मल फील्ड ऑफ डिप्लॉयमेंट और नॉट विल बी डिसाइडेड बाय द अथॉरिटी व्हिच कंट्रोल्स द सर्विस और पोस्ट फ्रॉम व्हिच द एम्प्लॉयमेंट इज ट्रांसफर्ड। तो ये जो 3 स्टेटमेंट है तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है जब आपका टेम्पररी डेपुटेशन फॉरेन सर्विस में आप जाते हो तो टेम्पररी पीरियड के लिए आप जाते हो, ठीक है, नॉर्मली आप 5 ईयर्स के लिए जाते हो और एक्सटेंड होगा अनदर 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये तो ट्रांसफर इज आउटसाइड, तो एक्स कैडर आपका जो कैडर है तो आप अदर कैडर में डेपुटेशन में जाओगे कि फॉरेन सर्विस में अदर कैडर में जाओगे, तो वो आपका आउटसाइड द नॉर्मल फील्ड ऑफ डिप्लॉयमेंट हो गया, ये करेक्ट है, आउटसाइड द नॉर्मल फील्ड ऑफ डिप्लॉयमेंट। इसीलिए यहां पर क्या लिखा जाता है एक्स कैडर पोस्ट, एक्स कैडर मींस आपका जो कैडर है उससे वो अलग हो जाएगा। द ट्रांसफर इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये भी ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में आपको डेपुटेशन में भेजा जा रहा है कि आपको आप फॉरेन सर्विस में जा रहे हो, कहां पर कोई ऑटोनोमस बॉडी है कि कोई कॉर्पोरेट बॉडी है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, वहां पर काम करोगे। ठीक है, इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट वन कि आपका जो ट्रांसफर है वो विद इन नॉर्मल फील्ड ऑफ डिप्लॉयमेंट होगा कि आउटसाइड फील्ड ऑफ डिप्लॉयमेंट होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? आप अभी जिस अथॉरिटी के अंडर आप काम कर रहे हो, ठीक है, जिस अथॉरिटी के अंडर, जिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंडर आप काम कर रहे हो वही डिसाइड करेंगे कि आप द सेम आपका जो नॉर्मल फील्ड ऑफ डिप्लॉयमेंट होगा कि आउटसाइड में होगा। तो वही द क्वेश्चन वेदर द ट्रांसफर इज आउटसाइड द नॉर्मल फील्ड ऑफ डिप्लॉयमेंट और नॉट will be decided by the authority which controls the service or post
हु इज द एम्प्लॉई इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको देखना है। ठीक है, एक है जो डेपुटेशन फॉरेन सर्विस में बेसिकली एक्स कैडर पोस्ट होता है, आपका कैडर से वो अलग हो जाता है, इसलिए आउट ऑफ नॉर्मल फील्ड ऑफ डिप्लॉयमेंट। द ट्रांसफर इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, जो टेम्पररी ट्रांसफर होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। नेक्स्ट वन, आपका जो ट्रांसफर होगा वो बेसिकली नॉर्मल फील्ड ऑफ डिप्लॉयमेंट होगा कि आउटसाइड में होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? कि जिस अथॉरिटी के अंडर आप काम कर रहे हो और वो आपको अभी परमिशन दे रहे हैं कि आप डेपुटेशन में जाकर अदर ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, वही अथॉरिटी के पास पावर है, वही डिसाइड करेगा कि आप नॉर्मल फील्ड ऑफ डिप्लॉयमेंट आपका होगा कि आउटसाइड होगा। तो ये तीनों एक्चुअली करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, डेपुटेशन अलाउंस ड्यू टू चेंज ऑफ स्टेशन। एक होता है सेम स्टेशन होता है और एक चेंज ऑफ स्टेशन होता है। सपोज अभी आप डेपुटेशन में चला गया, मगर वो आपका स्टेशन चेंज हो गया, सेम स्टेशन में नहीं, ओके, आउट ऑफ स्टेशन हो गया, तो उसमें आपको डेपुटेशन अलाउंस कैसे मिलेगा? द अलाउंस विल बी पेबल एट द रेट ऑफ 10% ऑफ बेसिक पे सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹9,000 per annum. The allowance will be payable at the rate of 5% of basic pay subject to a maximum of ₹4,500 per annum. The allowance will be payable at the rate of 10% of basic pay subject to a maximum of ₹11,250 per annum. The allowance will be payable at the rate of 5% of basic pay subject to a maximum of ₹5,625 per annum. यहां पर देखिए चेंज ऑफ स्टेशन, आपका स्टेशन चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 10% ऑफ बेसिक पे, अदरवाइज मैक्सिमम कितना? 11,250। पहले क्या था, ये था जैसे डीए जो 50% नहीं हुआ था, 10% बेसिक पे बट मैक्सिमम था आउट ऑफ, जो चेंज ऑफ स्टेशन है मैक्सिमम ये 9,000 था, मगर उसमें आप देखा होगा वो क्लियरली मेंशन था कि जब डीए 50% हो जाएगा तब ये जो मैक्सिमम है वो उसका 25% हाइक हो जाएगा। तो अभी डीए ऑलरेडी 50% क्रॉस कर चुका है, तो 10% ऑफ बेसिक पे मैक्सिमम, इसी में 10%, 9,000 का 10% आप निकल कर देखिए, वो हो रहा है 2,250, तो मैं इसलिए ऐड कर दिया। तो बेसिकली चेंज ऑफ स्टेशन अभी जो है बेसिक पे का 10%, नहीं तो मैक्सिमम 11,250। कंफ्यूजन नहीं होना है, पहले 9,000 था, मगर वो बोला था कि जब डीए क्रॉस हो जाएगा 50% तब आपका जो ये जो मैक्सिमम 9,000 था वो 25% हाइक हो जाएगा। तो 9,000 का 25% आप निकाल दीजिए, वो 2,250 है, आप 9,000 में ऐड करने के बाद ये, अच्छा यदि सेम स्टेशन होगा, ये चेंज ऑफ स्टेशन है, सेम स्टेशन में क्या है ना, 5% ऑफ बेसिक पे, ठीक है, और मैक्सिमम 5,625, ये पहले था 4,500 था, और उसमें क्लियरली मेंशन था कि जब डीए 50% हो जाएगा तब ये 25% हाइक हो जाएगा। पहले 4,500 था मगर अभी 5,625 है, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए डेपुटेशन अलाउंस, द डेपुटेशन अलाउंस एडमिसेबल शैल बी एट द फॉलोइंग रेट्स विदिन द सेम स्टेशन, 5% ऑफ बेसिक पे, मैक्सिमम 5,625। कंफ्यूजन नहीं होना है, पहले 4,000 था, पहले 4,500 था, और जब डीए ये बोला था कि जब डीए 50% हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसमें 25% हाइक हो जाएगा, तो इसको निकाल दो, इसमें 25% हाइक हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप देखोगे चेंज ऑफ स्टेशन, आपका स्टेशन चेंज हो रहा है, तो उसमें 10% ऑफ बेसिक पे और मैक्सिमम होगा ₹11,250। ये पहले क्या था, 9,000 था, अभी डीए 50% टच कर गया ना, तो ये 25% इसमें हाइक कर दिया गया, ठीक है। तो आप जब आपका पे डिसाइड होता है तो आपको ऑप्शन दिया जाता है, आपको 1 मंथ में ऑप्शन देना है। यदि आप पेरेंट कैडर का बेसिक पे ले रहे हो, पेरेंट कैडर, ओके, आपको यदि पेरेंट कैडर का बेसिक पे को आप फॉलो कर रहे हो, बेसिक पे में इसी में आपको डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा, डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा, और इसी के ऊपर डीए मिलेगा, क्योंकि आप पेरेंट कैडर को प्रीफर किया। तो पेरेंट कैडर में क्या होगा, बेसिक पे प्लस डेपुटेशन अलाउंस, ये दोनों को ऐड कर दो
और उसी के ऊपर डीए लगेगा, इसी के ऊपर डीए लगेगा। अदरवाइज आप डिसाइड करो जो बोरोइंग डिपार्टमेंट है उसका पे आप लोगे। ठीक है, मेरा इसमें डेपुटेशन फॉरेन सर्विस के ऊपर वीडियो है, आप देख लीजिए कैसे पे फिक्सेशन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इन केस ऑफ डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस। ठीक है, 4 ऑप्शंस गिवन, हमको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। द एम्प्लॉय शैल बी एंटाइटल्ड टू डियरनेस अलाउंस एट द रेट्स प्रिवेलिंग इन द बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसमें डियरनेस अलाउंस का बात है, डीए का बात है। डेपुटेशन फॉरेन सर्विस में जब आप जा रहे हो, आप किसका पे को आप ऑप्ट करोगे? जैसे मैं अभी बताया, आप पेरेंट कैडर का पे को ऑप्ट करोगे तो उसमें पेरेंट कैडर का अभी मैं बताया था, जैसे आपका पेरेंट कैडर का पे को ऑप्ट करोगे तो उसमें उसका बेसिक पे प्लस डेपुटेशन अलाउंस इसी के ऊपर डीए लगेगा, डियरनेस अलाउंस लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यदि और ऑप्शन है, यदि आप बोरोइंग डिपार्टमेंट का पे को आप फॉलो करोगे उसमें डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। पेरेंट कैडर का पे को ऑप्ट करोगे तो उसमें बेसिक पे प्लस डेपुटेशन अलाउंस और उसके ऊपर डीए मिलेगा। मगर आप ऑप्शन है, आप बोरोइंग डिपार्टमेंट का पे को ऑप्ट करोगे तो उसका जो डीए है मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन दिया है तो ये गलत है, क्योंकि ओनली आप किसका पे को ऑप्ट कर रहे हो, जिसका पे को ऑप्ट कर रहे हो उसी के हिसाब से आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा। द एम्प्लॉय शैल बी एंटाइटल्ड टू डियरनेस अलाउंस एट द रेट्स प्रिवेलिंग इन द लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं है, क्योंकि सपोज ये भी हो सकता है, लेंडिंग बोरोइंग जो ऑर्गेनाइजेशन है दोनों में डीए डिफरेंस हो सकता है, डीए सेम नहीं होगा, डीए डिफरेंट हो सकता है, सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये भी गलत है। द एम्प्लॉय शैल बी एंटाइटल्ड to dearness allowance at the rates prevailing in the borrowing organization or in the lending organization depending on whether he has opted to drop pay of the ex cadre post or the parent cadre post। यही करेक्ट है। तो आप किसका पे को ऑप्ट किया? यदि आपका पेरेंट कैडर को ऑप्ट किया तो पेरेंट कैडर का जो डीए है आपको मिलेगा। यदि आप एक्स कैडर पोस्ट मींस आपका जो डेपुटेशन पोस्ट है, आप उसको ऑप्ट किया, उसका पे को ऑप्ट किया तो उसका डियरनेस अलाउंस मिलेगा। तो आइदर और, ठीक है, तो किसका पे को आप ऑप्ट कर रहे हो, ओके, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर जो ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर है। मगर याद रखिए, यदि आप पेरेंट कैडर का पे को ऑप्ट करोगे तो उसी में ही डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा। तो पेरेंट कैडर में क्या होगा, बेसिक पे प्लस इसी में डेपुटेशन अलाउंस आएगा, ये दोनों के ऊपर ही डीए लगेगा। ठीक है, दोनों के ऊपर डियरनेस अलाउंस लगेगा। मगर आप यदि एक्स कैडर का पे को ऑप्ट कर रहे हो तो उसका जो बेसिकली बेसिक पे है और उसके ऊपर जो डीए है वही मिलेगा। ठीक है, चलो ठीक है। यहां पर देखिए, इन केस ऑफ डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस भाई सेम थिंग दिया है। द एम्प्लॉय शैल बी एंटाइटल्ड टू डियरनेस अलाउंस एट द रेट्स प्रिवेलिंग इन द बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन और इन द लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग ऑन whether he has opted to drop pay of the ex cadre post or the parent cadre post। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। इन केस ऑफ डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस, मेडिकल फैसिलिटीज विल बी रेगुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। लीव रूल्स शैल बी रेगुलेटेड बाय द बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन। An employee proceeds from vacation department to non vacation department और vice versa, he shall be governed by leave rules of the lending organization। ऐसे दिया है, तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करना है। ठीक है, डेपुटेशन फॉरेन सर्विस में आप चले गए तो आपका जो मेडिकल फैसिलिटीज जो आप अवेल करोगे तो किसका, आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का मेडिकल फैसिलिटी आपको अलाउ किया जाएगा ना, जिस डिपार्टमेंट में टेम्पररी पीरियड के लिए आप चले गए, जो बोरोइंग डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो उसका मेडिकल फैसिलिटी लागू होगा। याद रखिए, मेडिकल फैसिलिटीज में लेंडिंग नहीं, ये बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन का जो मेडिकल फैसिलिटी है उसी को आप अवेल करोगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, लीव रूल्स का बात आया, जब नॉर्मल लीव रूल्स का बात आता है तो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का जो लीव रूल्स है उसी को फॉलो किया जाएगा। और यहां पर बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, ये गलत है। ये क्या होगा, लेंडिंग का होगा। नॉर्मली लीव रूल्स आता है, किसका लीव रूल्स लागू होगा, आपका पेरेंट
डिपार्टमेंट का लीव रूल्स लागू होगा, मगर ये गलत है, यहां पर बोरोइंग दे दिया। अच्छा नेक्स्ट वन, यदि एम्प्लॉय वैकेशन डिपार्टमेंट से नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट जा रहा है, ठीक है, यदि जो आप डेपुटेशन फॉरेन सर्विस में जा रहे हो, आपका सपोज आपका पेरेंट डिपार्टमेंट वैकेशन था और आप अभी डेपुटेशन में नॉन वैकेशन को जा रहे हो, कि आपका पेरेंट डिपार्टमेंट नॉन वैकेशन था, अभी आप डेपुटेशन फॉरेन सर्विस में एक वैकेशन डिपार्टमेंट को जा रहे हो, तो इस केस में किसका लीव रूल लागू होगा? तो जब चेंज हो जाएगा वैकेशन टू नॉन वैकेशन, तो अब आपको याद रखना है जो बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी गलत है, लेंडिंग दे दिया, जो बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन का जो लीव रूल्स है वही एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर जो तीनों है गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो और एक बार बता देता हूं, मेडिकल फैसिलिटीज बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मल लीव रूल्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। यदि आपका आप वैकेशन टू नॉन वैकेशन कि नॉन वैकेशन टू वैकेशन ऐसे जाते हो, तो बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन का लीव रूल्स लागू होगा, ठीक है। मगर ये सब तीनों इधर उधर करके दिया है, मैं आपको क्लैरिफाई किया, तो उसमें तीनों इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें थोड़ा भी उसको क्लैरिफाई करेंगे, आप देख लीजिए, क्लियरली मेंशन है, इन केस ऑफ डेपुटेशन ऑफ फॉरेन सर्विस मेडिकल फैसिलिटीज बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मल लीव रूल्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, यदि यहां पर वैकेशन टू नॉन वैकेशन कि नॉन आपका पेरेंट डिपार्टमेंट वैकेशन है, आप अभी डेपुटेशन फॉरेन सर्विस में नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट को जा रहे हो, कि आपका पेरेंट डिपार्टमेंट नॉन वैकेशन है, आप अभी डेपुटेशन फॉरेन सर्विस में वैकेशन डिपार्टमेंट को जा रहे हो, तो वहां पर किसका लीव रूल लागू होगा? ना बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और इसमें और एक चीज याद रखिए, रिवर्सन टाइम में आप डेपुटेशन में चले गए, एट द टाइम ऑफ रिवर्सन फ्रॉम द डेपुटेशन पोस्ट टू द पेरेंट कैडर, जब आप रिवर्स आ जाओगे बोरोइंग डिपार्टमेंट से, फिर आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को आप आओगे, तो बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन आपको कितना लीव आपको अलाउ कर सकता है? द बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन मे अलाउ हिम और हर लीव नॉट एक्सीडिंग 2 months। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिवर्सन केस में, जब आपका रिवर्सन होता है, जब आप बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन में आपका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को आप आ रहे हो, तब उस केस में इट मींस द बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन मे अलाउ, आपको कितना दिन तक वो लीव अलाउ कर सकता है, नॉट एक्सीडिंग 2 months, इसको याद रखिए। फिर बाकी यदि आपको लेना है, आपका जो पेरेंट कैडर का जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसका परमिशन लेना है, मगर जब आप रिवर्सन होता है तो बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन आपको अप टू 2 months आपको लीव दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं, और इससे ज्यादा लेना है तो आपका पेरेंट कैडर का जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसका परमिशन लीजिए, ठीक है। चलो यहां पर वही क्वेश्चन बहुत इजी हो गया आपके लिए, अभी तो हम डिस्कस कर लिया। इन केस ऑफ डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस एट द टाइम ऑफ रिवर्सन फ्रॉम द डेपुटेशन पोस्ट टू द पेरेंट कैडर, द बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन में अलाउ हिम और हर नॉट एक्सीडिंग डैश, तो कितना लीव अलाउ करेगा? नॉट एक्सीडिंग 2, अप टू 2 months, नॉट एक्सीडिंग 2 months, अभी डिस्कस किया। तो यदि रिवर्सन टाइम में आप बोरोइंग डिपार्टमेंट से आपका पेरेंट डिपार्टमेंट जो लेंडिंग डिपार्टमेंट को आप आ रहे हो, तो उस केस में बोरोइंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है, वो आपको अप टू 2 months लीव दे सकता है, नॉट एक्सीडिंग 2 months, ठीक है। और उसके बाद आपको लीव लेना है तो आपका पेरेंट कैडर का जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसका परमिशन लेना है। तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे। इन केस ऑफ डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस, इन व्हिच ऑफ द बिलो केसेस देयर इज नो म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो म्यूचुअल कंसेंट, तो वहां पर कुछ म्यूचुअल कंसेंट होता है, लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन में म्यूचुअल कंसेंट में डिसाइड होता है कि पर्टिकुलर जो रूल है वो किसका फॉलो किया जाएगा। जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस एंड ट्रांसफर टीए, ये जो एमसी, ये म्यूचुअल कंसेंट, मेडिकल फैसिलिटीज ये बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ये बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन, एलटीसी म्यूचुअल कंसेंट, एमसी मींस म्यूचुअल कंसेंट, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस म्यूचुअल कंसेंट, ज्वाइनिंग टाइम एंड ज्वाइनिंग टाइम पे ये भी म्यूचुअल कंसेंट, एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये भी म्यूचुअल कंसेंट। अभी क्लियर हो गया? सो देयर इज नो म्यूचुअल कंसेंट, ओनली मेडिकल फैसिलिटीज यहां पर है, ओके। यहां पर दिया है इन व्हिच ऑफ द बिलो केसेस देयर इज नो म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ट्रैवलिंग अलाउंस एंड ट्रांसफर टीए, मेडिकल फैसिलिटीज, एलटीसी,
चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस, ज्वाइनिंग, अच्छा और एक दे दिया लीव। लीव में बेसिकली लीव, इसमें म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, ये लेंडिंग, इट मीन्स लेंडिंग डिपार्टमेंट, ये लेंडिंग है। तो अभी क्लियर हो गया आप। नॉर्मल लीव्स में बोला था, मगर यहां पर वैकेशन टू नॉन वैकेशन, नॉन वैकेशन टू वैकेशन वो बोरोइंग है, मगर नॉर्मल लीव रूल्स यदि आता है और वैकेशन टू वैकेशन जाते हो कि नॉन वैकेशन टू नॉन वैकेशन जाते हो तो उस केस में लेंडिंग। तो लीव मीन्स लेंडिंग। तो अभी क्लियर हो गया। इन विच ऑफ द बिलो केसेस देयर इज नो म्यूचुअल कंसेंट? 2 and 7, 2 and 7 ऑप्शन ए। मेडिकल एंड लीव बोथ में म्यूचुअल कंसेंट लागू नहीं होगा। अदर केस में जैसे आप ट्रैवलिंग अलाउंस एंड ट्रांसफर टीए है, एलटीसी है, चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस है, ज्वाइनिंग टाइम पे है, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये सब म्यूचुअल कंसेंट में एग्रीमेंट होगा कि किसका फॉलो किया जाएगा। मगर मेडिकल फैसिलिटीज, लीव, ये दोनों में म्यूचुअल कंसेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर दे दिया, देखिए म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर दे दिया, म्यूचुअल कंसेंट होगा बिटवीन द लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ज्वाइनिंग टाइम पे, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड ट्रांसफर टीए, चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस, एलटीसी, ये सब म्यूचुअल कंसेंट है। ठीक है, मगर अदर केस में जाएंगे, जैसे आप बोलेंगे डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस आप किसका पे को ऑप्ट कर रहे हो? यदि आप आपका पेरेंट कैडर का पे को ऑप्ट कर रहे हो उसका डीए मिलेगा, यदि आप बोरोइंग डिपार्टमेंट का पे को ऑप्ट कर रहे हो तो उसका डीए मिलेगा। और एक है लीव, नॉर्मल लीव रूल्स यदि सेम है, आप नॉन वैकेशन टू नॉन वैकेशन जा रहे हो, नॉन वैकेशन टू नॉन वैकेशन, ठीक है, तो इस केस में बेसिकली किसका लीव रूल्स? पेरेंट डिपार्टमेंट का लीव रूल्स। और नेक्स्ट है मेडिकल ऑलवेज मेडिकल फैसिलिटी जो होगा बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशंस का होगा। इसमें म्यूचुअल, ये तीनों में म्यूचुअल नहीं है, मगर अदर केस में म्यूचुअल है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहां पर दे दिया कि इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन ट्रांजिट ऑन ट्रांसफर is directed to proceed to a place different from that indicated in the initial transfer orders, तो यहां पर क्या होगा, मैं थोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अभी जैसे ट्रांसफर हुआ, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप अभी आपका ये ओल्ड हेडक्वार्टर है, ठीक है, आपका ये ओल्ड हेडक्वार्टर है, ओल्ड हेडक्वार्टर ए है, यहां से आपका ट्रांसफर हुआ न्यू हेडक्वार्टर बी को, ठीक है, मगर आप अभी इसी प्लेस में हो, इस प्लेस में हो, ये जो प्लेस का नाम सपोज आर है, ठीक है, मगर इसी प्लेस में हो, इट मीन्स आप जा रहे हो, आप ट्रांजिट में हो, इसी प्लेस में हो, इसी प्लेस में आपको एक रिवाइज ऑर्डर मिला कि आप अभी न्यू हेडक्वार्टर बी को नहीं जाएंगे, आप न्यू हेडक्वार्टर सी को जाएंगे। ठीक है, तो ये रिवाइज ऑर्डर में ये नहीं हुआ, आप यहां पर दे दिया गया, आप प्लेस जो हेडक्वार्टर बी को नहीं जाओगे, हेडक्वार्टर सी को जाओगे। ठीक है, मगर इनिशियली जब आपका ट्रांसफर हुआ था वो ए टू बी हुआ था, आप समझिए, ट्रांजिट में आप हो, ट्रांजिट में आप किस प्लेस में हो? प्लेस आर में हो, और प्लेस आर में हो, आपको रिवाइज ऑर्डर मिला कि आपको हेडक्वार्टर बी को नहीं जाना है, हेडक्वार्टर सी को जाना है, मैं टिक लगा दिया, तो उस केस में ज्वाइनिंग टाइम आपको कैसे मिलेगा? तो इसमें आप याद रखिए, जो आप अभी प्लेस आर में हो, ट्रांजिट में आप प्लेस आर में हो, तब तक जितना अवेलिंग टाइम, जितना ज्वाइनिंग टाइम आप अवेल कर चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अप टू प्लेस आर तक आप जितना ज्वाइनिंग टाइम अवेल किया है वो अलाउ होगा। नेक्स्ट, आपको प्लेस आर में आपको रिवाइज ऑर्डर मिला, तो जब रिवाइज ऑर्डर मिला वेरी नेक्स्ट डे से आपको फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम किस तक? हेडक्वार्टर सी आपको जाना है, हेडक्वार्टर सी तक मिलेगा फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम, फ्रेश स्पेल ऑफ ज्वाइनिंग टाइम। कहां से? ना प्लेस आर से, वही डिस्टेंस हम देखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हिसाब से ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ट्रांजिट में हो, आपको एक रिवाइज ऑर्डर मिला, आपको हेडक्वार्टर बी नहीं जाना है, आपको हेडक्वार्टर सी जाना है,
तो किस प्लेस में ट्रांजिट प्लेस है वो आर, मेरा एग्जांपल में, मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में ट्रांजिट प्लेस आर है, ठीक है। और ट्रांजिट प्लेस आर तक जो भी ज्वाइनिंग टाइम आप अवेल किया है कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको आप अवेल करोगे। बाकी जो है, जैसे आज आपको ऑर्डर मिला, रिवाइज ऑर्डर, आप अभी प्लेस आर में हो, तो वेरी नेक्स्ट डे से आपको फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। कहां तक? सी तक, आर टू सी। जो फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा आर टू सी मिलेगा, क्योंकि ट्रांजिट प्लेस आर है, तो ठीक है, तो इसमें फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। और ए टू आर आप जितना ज्वाइनिंग टाइम अवेल किया है कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ गया? तो वही क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शंस दिया है, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू ज्वाइनिंग टाइम ऑलरेडी अवेल्ड अप टू द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिवाइज ऑर्डर्स, ठीक है। फ्रेश स्पेल ऑफ फुल ज्वाइनिंग टाइम फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिवाइज ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये दोनों एक्चुअली 1 and 2 करेक्ट वन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे मेरा एग्जाम्पल था, मैं अभी बताया कि आपको जो ट्रांजिट प्लेस था वो आर था, आपको क्या था? बी जाना था, मगर अभी बी नहीं होगा, आपको अभी कौन सा हेडक्वार्टर जाना है? सी जाना है। तो ए टू आर इतना तक आप जितना ज्वाइनिंग टाइम ले चुके हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सपोज आप अभी प्लेस आर में हो, ये ट्रांजिट प्लेस है, और आज आपको रिवाइज ऑर्डर मिला कि आपको सी जाना है, बी नहीं जाना है। तो आज रिवाइज ऑर्डर मिला मींस कल से, आज रिवाइज ऑर्डर मिला मींस कल से आपका ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट होगा आर टू सी, ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट होगा आर टू सी, और आपको इसमें फुल ज्वाइनिंग टाइम आज यूजुअल मिलेगा डिस्टेंस के हिसाब से। समझ में आया कि नहीं? तो वही है, बोथ 1 and 2 और करेक्ट वन। तो उसमें देख लीजिए, इसमें क्लैरिफाई किया गया है सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 रूल 6। आप देखिए रूल 6 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन ट्रांजिट ऑन ट्रांसफर is directed to proceed a place different from that indicated in the initial transfer order। इनिशियल ट्रांसफर ऑर्डर में आपको हेडक्वार्टर बी जाना था, मगर अभी रिवाइज ऑर्डर में आपका कहां पर जाना है? हेडक्वार्टर सी को जाना है, ठीक है। आपका ओल्ड हेडक्वार्टर क्या था? ओल्ड हेडक्वार्टर क्या था? ए था। आपको कहां जाना था? बी जाना था। अभी आप बी नहीं जाओगे, अभी आप सी को जाओगे। तो यहां पर सपोज आप अभी प्लेस, ये ट्रांजिट प्लेस है, और यहां पर आपको रिवाइज ऑर्डर मिला कि आपको हेडक्वार्टर बी नहीं जाना है, हेडक्वार्टर सी को जाना है। तो यहां से तो ए टू आर, ओल्ड हेडक्वार्टर टू आर जो ट्रांजिट प्लेस है, तब तक आप ऑलरेडी ज्वाइनिंग टाइम अवेल कर चुके हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये जो ट्रांजिट प्लेस में हो, आज आपको रिवाइज ऑर्डर मिला, तो कल से वेरी नेक्स्ट डे से आपका ज्वाइनिंग टाइम लागू होगा। कहां से? ना आर टू सी आपको फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। जो आर टू सी जो डिस्टेंस होगा, ओके, वही डिस्टेंस के हिसाब से आपको फुल ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये रूल 6 सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 देख लीजिए, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करना है। 3 statements given. The joining time pay shall be paid for by the new administrative authority where such government servant joins on transfer. He can draw compensatory allowances like city compensatory allowance, house rent allowance as applicable to the new station where he joins on transfer. In case of joining time, he can be allowed conveyance allowance or permanent traveling allowance. ये 3 स्टेटमेंट है। करेक्ट क्या है? देखिए, आपको ज्वाइनिंग टाइम पे कौन देगा? सभी समय याद रखिए, ज्वाइनिंग टाइम पे आपको न्यू डिपार्टमेंट देगा, जिसमें आप ज्वाइन करने के लिए जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि ओल्ड आपका जो डिपार्टमेंट था, ठीक है, आप उससे ऑलरेडी आप वहां से रिलीव हो चुके हो, ठीक है। तो ज्वाइनिंग टाइम पे सभी समय कौन देगा? ना न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी देगा। जो आप जाकर जो अभी न्यू हेडक्वार्टर जा रहे हो, जो न्यू हेडक्वार्टर में जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी है, वही आपका ज्वाइनिंग टाइम पे सैंक्शन करेगा, ठीक है।
क्लियर, वो दिया है, ठीक है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट वन, आपका जैसे आपको कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिल रहा है, आपका हाउस रेंट अलाउंस HRA, तो इसको कौन देगा ज्वाइनिंग टाइम में? तो याद रखिए, जो कॉम्पेंसेटरी अलाउंस जैसे सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब आपका ओल्ड स्टेशन देगा। ओके, ये कौन देगा? ओल्ड स्टेशन। ये गलत है, इसको आप ओल्ड स्टेशन देगा, ठीक है। ज्वाइनिंग टाइम में आप याद रखिए, ज्वाइनिंग टाइम में यहां पर वही दिया है। ओके, तो आपका जेटी में लिख दिया, ज्वाइनिंग टाइम में आपका जो कॉम्पेंसेटरी अलाउंस है और हाउस रेंट अलाउंस है, ओके, दोनों को ओल्ड स्टेशन देगा, ओल्ड स्टेशन के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। आपका जो ज्वाइनिंग टाइम पे देगा न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी देगा, जो आप जो ट्रांसफर होकर जा रहे हो जहां पर ज्वाइन करोगे वो देगा। मगर आपको जो सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, वो किस हिसाब से मिलेगा? वो बेसिकली ओल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका बेसिक पे के हिसाब से मिलेगा। इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं, ठीक है। जो ऑप्शन 1 है ये करेक्ट है, क्योंकि आपका जो ज्वाइनिंग टाइम पे है वो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी देगा। सेकेंड है, आपको याद रखिए, जो कॉम्पेंसेटरी अलाउंस है कि HRA है, वो किसके हिसाब से मिलेगा? वो बेसिकली आपका जो ओल्ड पे था, ठीक है, आप जो ओल्ड हेडक्वार्टर को आप से रिलीव हो गए ना, उसका जो पे था उसके हिसाब से कॉम्पेंसेटरी अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ठीक है। और ज्वाइनिंग टाइम में ये कॉन्वेंस अलाउंस की परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता है, मगर यहां पर दे दिया ही कैन बी अलाउड, ये गलत है। आपको ज्वाइनिंग टाइम में कॉन्वेंस अलाउंस की परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट में दे दिया वो जो कॉम्पेंसेटरी अलाउंस और HRA वो न्यू स्टेशन का बेसिक पे के हिसाब से मिलेगा। नो, ज्वाइनिंग टाइम में आपको बेसिक पे, आप ज्वाइनिंग टाइम में आपको जो पेमेंट किया जाएगा ज्वाइनिंग टाइम पे, वो कौन देगा? न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी देगा, न्यू हेडक्वार्टर का एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी देगा। मगर इसमें है जो कॉम्पेंसेटरी अलाउंस आपको मिल रहा था ओल्ड स्टेशन में, कि आपको HRA मिल रहा था, तो उसको किस हिसाब से मिलेगा भाई? ओल्ड स्टेशन बेसिक पे हिसाब से मिलेगा। ओल्ड स्टेशन का बेसिक पे नहीं, ओल्ड स्टेशन के हिसाब से मिलेगा। ओल्ड स्टेशन में जो HRA था, ओल्ड स्टेशन में जो कॉम्पेंसेटरी अलाउंस था, उसके हिसाब से मिलेगा। बाकी ज्वाइनिंग टाइम में आपको कॉन्वेंस अलाउंस और परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ओनली करेक्ट मींस ओनली ऑप्शन 1, ठीक है। यहां पर थोड़ा क्लैरिफाई भी किया गया है। आप CCS ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 रूल 7 देखिए, ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ज्वाइनिंग टाइम शैल बी रिगार्डेड एज ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड शैल बी एंटाइटल्ड टू बी पेड ज्वाइनिंग टाइम पे इक्वल टू द पे व्हिच वाज ड्रॉन बिफोर relinquishment of charge in the old post. He will also be entitled to DA if any. अच्छा, आप देखिए, जो आप ज्वाइनिंग टाइम में JT में लिख दिया, ज्वाइनिंग टाइम में आप जब रिलीव हो गए, जो ओल्ड हेडक्वार्टर से जब रिलीव हो गए, उसका जो बेसिक पे था, ओके, उसी का जो, देखिए मैं वही लिखता हूं, ओल्ड हेडक्वार्टर में आपका जो बेसिक पे था, ओके, ज्वाइनिंग टाइम में वही बेसिक पे मिलेगा और उसी का भी DA, वही ओल्ड हेडक्वार्टर का DA। मगर उसको पेमेंट कौन करेगा? ज्वाइनिंग टाइम, जो ज्वाइनिंग टाइम पे है वो समझ में आ गया, जो ओल्ड हेडक्वार्टर का बेसिक पे और ओल्ड हेडक्वार्टर का DA के हिसाब से मिलेगा। मगर उसको पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट करेगा न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाकर ज्वाइन अभी कर रहे हो वही आपको पेमेंट करेगा। मगर ज्वाइनिंग टाइम में बेसिकली आपका जो पे होता है वो ओल्ड हेडक्वार्टर का जो बेसिक पे होता है, जब आप रिलीव हुए उस समय जो बेसिक पे था, और उसी ओल्ड हेडक्वार्टर का जो DA था उसके हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। मगर पेमेंट कौन करेगा? न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। जिस इट मींस न्यू हेडक्वार्टर में आप जाकर ज्वाइन करोगे उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वही पे करेगा। और उस केस में जैसे आ जाता है कॉम्पेंसेटरी अलाउंस आ जाता है, HRA आ जाता है, ये किसके हिसाब से फिक्स होगा? ये सब ओल्ड हेडक्वार्टर के हिसाब से होगा। उसका जो कॉम्पेंसेटरी अलाउंस था कि HRA था, जो परसेंटेज था ओल्ड हेडक्वार्टर का, उसी के हिसाब से वो मिलेगा। मगर याद रखिए, जो पेमेंट करेगा बेसिकली न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी करेगा। मगर जो
पे होगा वो पे बेसिकली ओल्ड हेडक्वार्टर के हिसाब से होगा, ठीक है। और ज्वाइनिंग टाइम में आपको कॉन्वेयंस अलाउंस और परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां पर दे दिया देखिए, इन एडिशन ही कैन ऑल्सो ड्रॉ कॉम्पेंसेटिव अलाउंस लाइक सिटी कॉम्पेंसेटिव अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, जो परसेंटेज ओल्ड हेडक्वार्टर में था उसके हिसाब से मिलेगा। और उसको कन्वेंस नॉट बी अलाउड, कन्वेंस अलाउंस और परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस, ओके। और ज्वाइनिंग टाइम पे कौन पे करेगा? न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पे करेगा, क्लियर। ये सब आप देख लीजिए, रूल 7 सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 रूल 7 में क्लियरली मेंशन किया गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 को चलेंगे। in case of transfer of a government servant to or from northeast region including Sikkim, Andaman and Nicobar Island, Lakshadweep and Ladakh, dash additional time shall be admissible over and above the normal joining time, okay, over and above the normal joining time reckoned on the basis of actual distance between their old and new place of posting। आप देखिए, नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम है डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। मगर आप नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हो, जैसे सिक्किम है तो नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग सिक्किम है, अंडमान निकोबर है, लक्षद्वीप है, लद्दाख है, उसमें आप जा रहे हो कि वहां से रिटर्न आ रहे हो, तो उस केस में जो ज्वाइनिंग टाइम नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम से कितना ज्यादा मिलेगा, वही क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखिए, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम, देन बाद में आ जाएगा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा। इसमें आपका ट्रांसफर हो रहा है कि आप वहां से ट्रांसफर लेके आ रहे हो, तो उस केस में जो नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम है उससे ज्यादा 2 दिन मिलेगा, ओके। टू एडिशनल टाइम शैल बी एडमिसिबल ओवर एंड अबव, तो जो नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम है, जैसे नॉर्मल में 10 डेज था, मगर अभी आपको कितना मिलेगा? 12 डेज मिलेगा, ठीक है। मगर ये कब मिलेगा? जब आपका ट्रांसफर नॉर्थ ईस्ट को हो रहा है, जब आपका ट्रांसफर अंडमान निकोबार को हो रहा है, जब आपका ट्रांसफर लद्दाख को हो रहा है, जब आपका ट्रांसफर लक्षद्वीप को हो रहा है, कि रिवर्स आप वहां से ट्रांसफर लेकर आ रहे हो, तो उस केस में आपको जो 2 एडिशनल डेज ओवर एंड अबव द नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम आपको मिलेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां पर दे दिया देखिए, वही रूल 5 एडमिसिबल ज्वाइनिंग टाइम एंड कैलकुलेशन, रूल 5 आप देखिए, सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 रूल 5 में क्लियरली मेंशन है 2 एडिशनल टाइम, ओके, टू और फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंक्लूडिंग सिक्किम, अंडमान निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप एंड लद्दाख, ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ज्वाइनिंग टाइम मे नॉट बी कंबाइंड विथ। अच्छा, ज्वाइनिंग टाइम किसके साथ कंबाइन नहीं होगा? वैकेशन, रेगुलर लीव ऑफ एनी काइंड इंक्लूडिंग कैजुअल लीव, रेगुलर लीव ऑफ एनी काइंड एक्सक्लूडिंग कैजुअल लीव, रेगुलर लीव ऑफ एनी काइंड इंक्लूडिंग अर्न लीव। आपको याद रखिए, ज्वाइनिंग टाइम मे नॉट बी कंबाइंड विथ, ज्वाइनिंग टाइम सभी के साथ कंबाइन होगा मगर कैजुअल लीव के साथ कंबाइन नहीं होगा। जो जेटी है ना, ज्वाइनिंग टाइम कंबाइन होगा, वैकेशन के साथ कंबाइन होगा, वैकेशन के साथ कंबाइन होगा, ऑल लीव के साथ कंबाइन होगा एक्सेप्ट सीएल, ठीक है। इसमें मैं कंबाइन कर दिया, समझ में आ गया। वैकेशन के साथ कंबाइन होगा ऑल लीव एक्सेप्ट कैजुअल लीव, ठीक है। तो इट मीन ज्वाइनिंग टाइम कैजुअल लीव के साथ कंबाइन नहीं होगा। तो इसमें आप देख लीजिए, ऑप्शन आंसर हो जाएगा यहां पर, ज्वाइनिंग टाइम मे नॉट बी कंबाइंड विथ रेगुलर लीव ऑफ एनी काइंड इंक्लूडिंग कैजुअल लीव, ये गलत है, मे नॉट बी कंबाइंड। सो याद रखिए, वैकेशन के साथ कंबाइन होगा ऑल टाइप ऑफ लीव्स, जैसे अर्न लीव है, हाफ पे लीव है, कम्यूटेड लीव है, सभी लीव के साथ कंबाइन होगा, मगर कैजुअल लीव के साथ कंबाइन नहीं होगा। और वैकेशन के साथ भी कंबाइन होगा ज्वाइनिंग टाइम, मगर कैजुअल लीव के साथ कंबाइन नहीं होगा। तो यहां पर जो आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर यहां पर दे दिया, देखिए आपको जानते हो जब जितना ज्वाइनिंग टाइम आपको मिलता है, सपोज आपको ज्वाइनिंग टाइम 10 डेज मिला, मगर आप अवेल किए 2 डेज, तो बाकी 8 डेज क्या होगा?
बाकी 8 डेज वो ईएल में क्रेडिट हो जाएगा, ईएल में क्रेडिट हो जाएगा, याद रखिए। तो उसको एक एप्लीकेशन आपको देना है कि मुझे जो 10 डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम मिला, मैं ओनली अवेल 2 डेज किया, तो मेरा बाकी 8 डेज को, ठीक है, मेरा ईएल में क्रेडिट कर दिया जाए, और डिस्टेंस के हिसाब से आपको मिलता है ज्वाइनिंग टाइम, ठीक है। मगर सेम स्टेशन में, यदि सेम स्टेशन में आपका ट्रांसफर होता है और वहां पर रेसिडेंस चेंज नहीं होगा, आप याद रखिए, सेम स्टेशन और नो चेंज इन रेसिडेंस, तब आपको ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलता है, 1 डे मिलता है, ठीक है। इसको अवेल नहीं करोगे तो ये ईएल में क्रेडिट नहीं होगा, याद रखिए। सेम स्टेशन में ट्रांसफर हो रहा है और आपका रेसिडेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपका ज्वाइनिंग टाइम ओनली 1 डे मिलेगा, उसको अवेल कर लो। अवेल नहीं करोगे तो ईएल में क्रेडिट नहीं होगा। तो यहां पर वही दे दिया, ज्वाइनिंग द पीरियड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ज्वाइनिंग टाइम विल बी क्रेडिटेड टू ऑन लीव अकाउंट। ज्वाइनिंग टाइम में बी कंबाइंड विद वैकेशन एंड और रेगुलर लीव ऑफ एनी काइंड और ड्यूरेशन एक्सेप्ट कैजुअल लीव। कैजुअल लीव के साथ ज्वाइनिंग टाइम कंबाइन नहीं होगा, ठीक है। वैकेशन के साथ कंबाइन होगा और एनी अदर काइंड ऑफ लीव के साथ कंबाइन होगा एक्सेप्ट सीएल। ये रूल 6 बोल रहा है, सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 रूल 6 बोल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अंडर व्हिच फंडामेंटल रूल इट इज मेंशन्ड दैट an administrator of a union territory appointed by the president under article 239 of the constitution and includes the governor of Assam acting as agent to the president in respect of the northeast frontier agency। ये कौन सा फंडामेंटल रूल में मेंशन किया गया है, आप देख लीजिए, जितना डेफिनेशन है वो फंडामेंटल रूल 9 है। फंडामेंटल रूल 9 आप देख लीजिए सबसेक्शन 1A में ये क्लियरली मेंशन है, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटर का डेफिनेशन दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 1 में एक्ट जो है, एक्ट को डिफाइन किया गया है, मगर 1A में एडमिनिस्ट्रेटर को डिफाइन किया गया है। तो एडमिनिस्ट्रेटर, सभी यूनियन टेरिटोरीज का क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है। उनको कौन अपॉइंट करता है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 239। और इसमें जो गवर्नर ऑफ आसाम है वो एक्टिंग एजेंट है ऑनरेबल प्रेसिडेंट का, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में। तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, ये 4 डेफिनेशन में दे दिया। एक्ट है जो आप देखेंगे 9 फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 1 एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये रूल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो आप याद रखिए FR 9 सबसेक्शन 1 एक्ट के ऊपर है, और 1A जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, अभी मैं डिस्कस किया, ठीक है। और 1B में अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट जो क्वार्टर अलॉटमेंट होता है, ग्रांट ऑफ ए लाइसेंस टू गवर्नमेंट सर्वेंट टू ऑक्यूपाई हाउस ओन्ड लीज्ड और रिक्विजिशन्ड बाय द गवर्नमेंट और ए पोर्शन देयरऑफ फॉर यूज बाय हिम एज रेसिडेंस, जो आपको क्वार्टर अलॉटमेंट होता है, वो फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन है 1B। और नेक्स्ट वन कैडर का डेफिनेशन जो है फंडामेंटल रूल 9(4), ये रूल को याद रखिए। द स्ट्रेंथ ऑफ द सर्विस और ए पार्ट ऑफ सर्विस, देखिए कैडर का डेफिनेशन, द स्ट्रेंथ ऑफ सर्विस और ए पार्ट ऑफ सर्विस सैंक्शनड एज सेपरेट यूनिट। कभी कभी आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, कभी कभी वाइवा में आपको पूछ सकते हैं, तो यहां पर दे दिया एक्ट फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 1, 1A एडमिनिस्ट्रेटर का डेफिनेशन, 1B अलॉटमेंट जो क्वार्टर अलॉटमेंट होता है उसका डेफिनेशन, और कैडर का डेफिनेशन 9(4) में है। तो रूल को भी पूछ सकता है ना, रूल पूछ लेता है इस रिलेटेड मैटर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ड्यूटी इंक्लूड्स, ठीक है। इसमें कौन सा ड्यूटी में इंक्लूड होगा, सर्विस एज ए प्रोबेशनर और अप्रेंटाइज, सच सर्विस इज फॉलोड बाय कन्फर्मेशन। जैसे आप प्रोबेशनर हो कि अप्रेंटाइज, अभी भी ट्रेनिंग ले रहे हो, उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली कन्फर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में फर्स्ट 2 इयर्स प्रोबेशन होता है, प्रोबेशन पीरियड वो टेम्पररी होता है, जैसे प्रोबेशन कंफर्म हो जाएगा आप परमानेंट बन जाएंगे, तो ये ड्यूटी पीरियड माना जाएगा। जैसे प्रोबेशन पीरियड में कि अप्रेंटाइज आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हो, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट जॉब परमानेंट हो जाएगा, तो वो सब पीरियड जो प्रोबेशन पीरियड है कि जो अप्रेंटाइज जो ट्रेनिंग पीरियड है वो सब ड्यूटी में माना जाएगा, ज्वाइनिंग टाइम ड्यूटी माना जाएगा।
कोई आप ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग, कहां पर अभी आप कोई इंस्ट्रक्शन ले रहे हो, कोई ट्रेनिंग ले रहे हो, वो भी ड्यूटी में माना जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो ड्यूटी का डेफिनेशन आप देख लीजिए, फंडामेंटल रूल 9, ठीक है, सबसेक्शन 6 देख लीजिए, इसमें ड्यूटी को डिफाइन किया गया है। उसको भी अभी हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसमें क्लियरली देख लीजिए। जो फंडामेंटल रूल 9(6) ड्यूटी जो बीट ए है, ड्यूटी इंक्लूड्स सर्विस एज ए प्रोबेशनर और अप्रेंटिस, सच सर्विस इज फॉलोड बाय कन्फर्मेशन ज्वाइनिंग टाइम। इसमें 2 बीट्स है। फिर बीट बी को आएंगे, ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी। किस समय ना आप ट्रेनिंग ले रहे हो कि कोई कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सब ड्यूटी में माना जाएगा। और एक है सेकेंड वन, जैसे कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल में आप हो और वो ट्रेनिंग ले रहे हो और आप उस खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली आपको जॉब, परमानेंट जॉब मिलेगा, तो वो पीरियड भी ड्यूटी में माना जाएगा। इन द केस ऑफ ए स्टूडेंट, स्टाइपेंडरी और अदरवाइज हु इज एंटाइटल्ड टू बी अपॉइंटेड टू द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑन पासिंग थ्रू ए कोर्स। आपको ट्रेनिंग कंपलसरी है। जैसे आप ज्वाइन करोगे, आपको जैसे आप जो एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, सो जैसे आर्मी है, वहां पे एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, नहीं, वो ट्रेनिंग पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली आपका जॉब परमानेंट होगा। तो वो बेसिकली एक उसका जो क्या है, कॉलेज होता है ना, वो कॉलेज में आपको ट्रेनिंग मिलता है। तो फिर आप सक्सेसफुली ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको जॉब परमानेंट होगा। तो ये सब ड्यूटी में माना जाएगा। तो ये फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 6 ये ड्यूटी के ऊपर है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, ए पीरियड ऑफ एन अनऑथराइज एब्सेंस। आप अनऑथराइज एब्सेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए फंडामेंटल रूल 17A, ये है फंडामेंटल रूल 17A में अनऑथराइज्ड एब्सेंस के ऊपर दिया है। यदि आप कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट दिया है, इन द केस ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स ड्यूरिंग ए स्ट्राइक which has been declared illegal under the provisions of the Industrial Dispute Act 1947 or any other law for the time being in force, ये अनऑथराइज एब्सेंस होगा। यदि आप कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हो और इलीगली आप स्ट्राइक में बैठ गए, वो इलीगल है, स्ट्राइक को इलीगल है, आप वहां पर जस्ट यू इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक एंड स्ट्राइक इज इलीगल वन, तो इस केस में आप जितना पीरियड आप स्ट्राइक में रहोगे वो अनऑथराइज एब्सेंस हो जाएगा। यदि वंस अनऑथराइज एब्सेंस होता है तो उसको कंडोन कौन करते हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यदि वो कंडोन नहीं करेंगे आपका सर्विस ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और अदर एम्प्लॉइज, आप ये तो फास्ट था इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। अदर एम्प्लॉइज के लिए दिया है, एज ए रिजल्ट ऑफ एक्शन इन कॉम्बिनेशन और इन कॉन्सेंट्रेटेड मैनर सच एज ड्यूरिंग ए स्ट्राइक विदाउट एनी अथॉरिटी और वैलिड रीजन टू बी सेटिस्फैक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सेकेंड में देखिए, सेकेंड में क्या है, जैसे आपको कोई परमिशन नहीं दिया, आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने परमिशन नहीं दिया, आप जाकर अभी स्ट्राइक में हो, आप एक ग्रुप होकर आप स्ट्राइक में हो, आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने परमिशन नहीं दिया, तो वो पीरियड क्या होगा। आपको तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी परमिशन नहीं दिया, इलीगली आप जाकर स्ट्राइक में इन्वॉल्व हो गए, तो उस केस में भी जो जितना पीरियड आप स्ट्राइक में बैठोगे, जो इलीगल स्ट्राइक में, वो अनऑथराइज एब्सेंस हो जाएगा। यदि आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको कंडोन नहीं करेंगे तो आपका सर्विस ब्रेक होगा। ये भी करेक्ट है। इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉई रिमेनिंग एब्सेंट अनऑथराइज्डली और डेजर्टिंग द पोस्ट, आप अनऑथराइज एब्सेंस, आप लीव अथॉरिटी का परमिशन नहीं लिया और आप काम नहीं कर रहे हो, आप ड्यूटी को आ रहे हो, आप छोड़कर चले जाते हो, कोई आपका ड्यूटी, नॉर्मल ड्यूटी जो है आप नहीं कर रहे हो, यू डू नॉट सर्विस टू द पब्लिक प्रॉपरली, तो इस केस में वो अनऑथराइज एब्सेंस माना जाएगा। तो तीनों केस में अनऑथराइज एब्सेंस माना जाएगा। ये क्लियरली मेंशन है फंडामेंटल रूल 17A, जिसको इसमें क्या है, डाइज नॉन डिक्लेयर हो जाएगा। डाइज नॉन में क्या है, सर्विस ब्रेक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसी में दे दिया है अनऑथराइज एब्सेंस, वही तीनों चीज को दिया गया है। एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, यदि आप इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हो, इलीगल आप स्ट्राइक में बैठ गए, तो जितना पीरियड आप बैठ गए वो अनऑथराइज एब्सेंस हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अदर, जनरली अदर एम्प्लॉइज के लिए, जैसे आप कोई स्ट्राइक में इन्वॉल्व हो गए, कोई स्ट्राइक डेमोन्स्ट्रेशन, तो बेसिकली स्ट्राइक को ले जाओ और इसमें क्या है, आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने परमिशन नहीं दिया, ठीक है, तो उस केस में जो स्ट्राइक पीरियड वो इलीगल था और वो अनऑथराइज एब्सेंस हो जाएगा।
और नेक्स्ट है आप अनऑथराइजली आप लीव अथॉरिटी का परमिशन नहीं लिया, एब्सेंट हो गए और बाकी आप काम नहीं कर रहे हो, आपका नॉर्मल काम नहीं कर रहे हो, ओके, छोड़कर आप चले गए, तो वो जो पीरियड है वो सब अनऑथराइज एब्सेंस में इंक्लूड हो जाएगा। अनऑथराइज एब्सेंस को कंडोन नहीं किया जाएगा तो आपका सर्विस ब्रेक होगा, वही डाइज नॉन है। ठीक है, तो आज इतना 15 क्वेश्चंस में डिक्लेयर कर दिया, ये मेरा थर्ड पार्ट था। सो अगेन प्लीज माय फ्रेंड्स, you subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get exciting videos in subsequent time. It is my third part, super 15 MCQ third part on fundamental rules. So I will bring some good videos, so please subscribe my channel. Thank you and namaskar to all of you.